Hello everyone, welcome to Narayana Educational Institution. So students, what we are going to do in today's video, we have to study about the magnetic effects of electric current. So whenever we talk about the different effects of electric current, so we have three effects of electric current as we discussed in the previous video also, that we have heating effect of electric current, then we have chemical effect of electric current, and the third one is the magnetic effect of electric current. So what do we mean by the word magnetic effect of electric current? Magnetic effect of electric current means whenever current is going to be supplied, जब भी current pass on होगा, so our conductor will start behaving like a magnet. So कैसे वो magnet की जैसे behave करना start कर देते हैं? So that also we will be discussing. Okay, so quickly let's just start with our session. So firstly let's talk about what are magnets. मैग्नेट्स हमारे पास क्या होते हैं? सो आई नो दैट ओके सबके पास कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जिसमें मैग्नेट होगा. लाइक यू कैन टेक अ वेरी बेस्ट एग्जांपल, जो आपके ईयरफोन्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स होते हैं. लाइक व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक देम नियरर टू ईच अदर, सो यू कैन फील दैट वाइब्रेशंस आर हैपनिंग, और यू कैन से कुछ फ्लक्चुएशंस होती है उनमें. करेक्ट. सो दैट मींस उनमें भी मैग्नेट्स है. दे विल either try to attract each other. So basically ईयरफोन्स के केस में तो they try to attract each other. करेक्ट. ठीक है. सो मैग्नेट्स क्या है हमारे पास? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. जो भी चीजें हमारी आयरन, कोबाल्ट या निकल से बनी होंगी तो वो कैसे हमारी बिहेव कर सकती है? वो हमारी मैग्नेट्स के जैसे बिहेव करेंगी. लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल आल्सो. सो वी कैन आल्सो से ईयरफोन्स हमारे हो गए. ओके. सो दे आर सो उनमें क्या है? वो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल से बने. सो जो से भी सब्सटेंसेस हमारे इन मटेरियल से बने होते हैं, ओके, इधर आयरन, कोबाल्ट और निकल, हम उन्हें क्या बोल देते हैं? दैट ओके दोज आर मेड अप फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल. Magnetic materials. Okay, so we have different types of magnets also. Like we can say horseshoe magnet ho gaya, ring magnet ho gaya, bar magnet ho gaya. Then we have cylindrical magnets also, or circular magnets also. Okay, so like there are different types of magnet. That's why we can characterize them into two types. Like we can say we are having, some of them are going to be the permanent magnet, whereas some of them are going to be the temporary magnet. Magnet. Okay, so some of them are going to be the permanent and some of them are going to be the temporary magnets. So जो permanent magnets होते हैं उनके magnetism को हम change नहीं कर सकते, but जो temporary magnets होते हैं ना उनके magnetism को हम change कर सकते हैं. Okay, so in that case can you let me know that okay which one is going to be the temporary magnet? You can let me know in the comment section also students. So temporary magnets का best example आप लोग देख सकते हो आपके स्कूल में जो bells होती है. ठीक है, उसमें हमारे टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं. जब रिक्वायरमेंट होती है तभी बेल रिंग करती है. ऐसे थोड़ा ना कि हर टाइम वो रिंग कर रही है, नहीं ना. सो दैट्स व्हाई जब करंट को पास ऑन करवाएंगे तब वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेंगे. ओके, so that's why we can say some of them are going to be the permanent, whereas some of them are going to be the temporary ones. Temporary ones के magnetic field को हम change कर सकते हैं by changing the current. Okay, so what we can say कि ठीक है चलो ये दो टाइप्स के हमारे पास मैग्नेट्स हो गए. अब मैग्नेट्स की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? सो वी कैन से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है. बट ये जो मैग्नेट्स है ना ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर चलेंगे. पहले क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले एक तो हमारे पास आ गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लाइक वी कैन से कि ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल को. ठीक है, सो कोई भी हमारे पास लेट्स से कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है. ठीक है, एंड इफ इन केस इट इज गोइंग टू बी केप्ट नियरर टू द मैग्नेट तो वो क्विकली अट्रैक्ट कर लेगा उसे. ओके, देन वी कैन से डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. लाइक अगर हम फ्रीली छोड़ देना मैग्नेट को तो we can simply say that okay it is going to align itself in the geographical north south pole. It can, अगर हम freely छोड़ दे किसी भी magnet को, it can align itself in the geographic north south pole. Then we can say poles की interaction कैसी रहती है poles की? Like we can say this thing, जो like poles होते हैं, like poles. Okay, so if in case we are having two north poles, ठीक है, north आपस में क्या करेंगे? So they are going to attract or repel. Like in the same manner जैसे charges करते हैं ना वैसे ही हमारे पास magnets भी करते हैं. We can simply say like poles are going to repel each other. Whereas if in case we talk about unlike poles, unlike means north south. Okay, so they will attract each other. They are going to attract each other, whereas like poles are going to repel each other. Like अगर हम south poles, दो magnet के south poles को साथ में लेकर आते हैं ना, so they are going to repel each other. Okay, then we can say poles की existence. अब एक चीज को देखो, let's say कि हमारे पास ना एक बार मैग्नेट है. Okay, let me okay yeah, एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल
साउथ पोल. ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन विद दिस बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को ना हमने ब्रेक कर दिया. व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी पोल्स आर गोइंग टू बी देयर नाउ? 1 2 3 4, कितने पोल्स होंगे इसके? ये 2 ही रहेंगे. क्या होगा? सो फर्स्ट थिंग, अब ये ना हमारे पास 2 मैग्नेट्स में डिवाइड हो गया. करेक्ट. अब जो हर मैग्नेट है ना उसके 2 पोल्स रहेंगे. सो दैट मीन्स इन टोटल वी आर गोइंग टू हैव 4 पोल्स, 2 नॉर्थ 2 साउथ. ओके, सो दैट्स व्हाई जो मैग्नेट्स है वो कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि एक ही पोल एग्जिस्ट कर रहा है. नो. Okay, so it is always going to be so existence of magnet is going to be only in the case when there are going to be 2 poles. ठीक है, तो 2 पोल्स रहेंगे ही रहेंगे. जैसे हमने यहाँ पर ब्रेक किया था, तो ब्रेक करने के बाद भी मैग्नेट के 2 पोल्स होंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन्ड दैट पोल एक्सिस्टिंग. सो पोल का एग्जिस्टेंस रहेगा. कब तक रहेगा? चाहे हम बिल्कुल माइन्यूट से वी कैन से साइज में ही क्यों ना कर दे. ओके, देन ऑल्सो पोल्स 2 ही पोल्स रहेंगे. सो विच आर गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, अब इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास. मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक सा लॉजिक क्या है हमारे पास? दैट मीन्स जहां तक हमारा मैग्नेट बी लाइक वी कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. लाइक लेट्स से कि हमारे पास ना एक मैग्नेट है. ओके, लेट्स कंसिडर इट एज अ मैग्नेट. ठीक है, एंड नाउ वी आर सेइंग कि इस पॉइंट तक ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करवा पा रहा है. अगर अब मेरा एक पॉइंट इससे थोड़ा सा फार अवे हो गया, उस टाइम पर ये ऑब्जर्व नहीं करवाएगा. ठीक है, उस टाइम पर ना ही हम अट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना ही हम रिपल्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द रीजन अप टू विच वी कैन से कि वो रीजन जहां तक हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट रीजन इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ. ओके, so that's why the region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected. Okay, so either we are going to have a repulsive force or an attractive force. तो कोई भी अगर फोर्स हमें ऑब्जर्व हो रहा है जिस पॉइंट तक, वहां तक मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, क्लियर विद दिस? आई होप कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लग गया होगा. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू डिनोट इट? सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने का हमारा लॉजिक क्या है कि हम ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू डिनोट करते हैं. ओके, सो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डायहार्ड की ऐसी ही लाइंस होंगी एग्जैक्टली, नहीं. These are imaginary lines only, and in the picture we can see that there are maximum number of magnetic field lines near the poles. एक चीज देखो यहाँ पर. So if in case I talk about or let's say that we are going to talk about, इसमें देखो आयरन फिलिंग्स को सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ये हमारे पास आयरन फिलिंग्स थी जिन्हें हमने स्प्रिंकल किया था. ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ना सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स पोल्स पर हो रही थी. क्यों हो रही थी? बिकॉज पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होती है. ओके, इफ इन केस वी हैव टू ड्रॉ, चलो एक मैग्नेट के केस में ड्रॉ करते हैं. लेट्स से दैट वी हैव अ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ओके, सो हमारी व्हाट वी कैन से आउटसाइड द मैग्नेट, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से कहां जाएंगे? वो हमारी जाएंगे नॉर्थ टू साउथ. एंड देन वी कैन से इनसाइड द मैग्नेट, magnetic field lines will go from where to where? So inside the magnet they will go from south to north. इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अलग है, इनसाइड की अलग है. ओके, सो आउटसाइड we can say it's from north to south into S. But if in case we are talking about inside, so inside the magnet we are having from south to north itself. ओके, एंड जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी एग्जिस्ट करेंगी वो कहां पर करेंगी? वो करेंगी हमारी पोल्स पर. एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? सो और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. ओके, सो दिस सिग्निफाइज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल. सो कहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट होगी? सो इट्स गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स इटसेल्फ. ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव आल्सो सीन कि पोल्स पर कैसी है ये? पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट वन. Okay, so इसके बाद, so if in case this thing is not clear, you can let us know in the comment section also. Okay,
अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमें पता लग गई दैट ओके सो दे आर गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे आर गोइंग टू इमर्ज एट द साउथ पोल. ठीक है, बट इनसाइड भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. तो इससे हमें क्या एक चीज समझ आ रही है कि हमें ये पता लगा कि ना वो कंटिन्यूअस है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है हमारे पास? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी कंटिन्यूअस. करेक्ट, दैट्स व्हाट वी कैन आल्सो सी. No, that we have already seen also. And yes, so poles कौन-कौन से थे? North pole and then we were having a south pole. Then अब देखो डायरेक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, so outside the magnet it's from north to south, but inside it's from south to north. So these were the directions also. Okay, अब आते हैं डेंसिटी की. डेंसिटी हमारे पास बेसिकली क्या होगी कि जितना हम मैग्नेट के नियर बाय होंगे, ओके, मैग्नेट के जितने नियर बाय होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. बट जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी डेंसिटी क्या होती जाएगी, और वी कैन से कि स्ट्रेंथ क्या होगी, वो हमारी वीकन अप होती जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है. सो दैट मीन्स हमें एक चीज समझ आ गई कि जो हमारी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो हमारी विद डिस्टेंस क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है. करेक्ट. सो इससे हम बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, or we can say magnetic field is inversely proportional to distance. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, वैसे वैसे we can say magnetic field हमारी कम होती रहेगी. Clear with this thing? Okay, so these are going to be some characteristics of magnetic field lines. Now after this, so what we can say, we can also like then there was one of the most important experiment, like कभी कभी इससे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. ओके, सर हंस ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? सो व्हाट ही परफॉर्म्ड, उन्होंने एक सर्किट लिया, ठीक है, जिसमें बैटरी थी, हमारे पास स्विच था. ओके, देन वी वर हैविंग, देन वी कैन आल्सो से एक मैग्नेटिक कंपास नीडल थी. अब जब हमारा करंट सर्किट में से फ्लो नहीं कर रहा था, कब फ्लो नहीं करेगा? यस, व्हाट्स द कंडीशन व्हेन करंट शुड नॉट फ्लो? सो जब हमारा स्विच किस में होगा? व्हेन स्विच इज इन ऑफ स्टेट. ओके, जब हमारा स्विच ऑफ स्टेट में होगा, सो व्हाट वी कैन से, उस टाइम पर हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा. अब जब करंट फ्लो नहीं करेगा, सो कंपास नीडल रिमेन्स अनचेंज्ड. कुछ भी चेंज नहीं आएगा मैग्नेटिक कंपास नीडल में. बट अब हम क्या बोलते हैं, जब हमारा करंट फ्लो करेगा, व्हेन करंट इज गोइंग टू फ्लो, उस टाइम पर कंपास नीडल हमारी डिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, तो अब देखो, लेट्स से कि अब हमारा स्विच कौन से स्टेट में है? नाउ द स्विच इज इन ऑन स्टेट. करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा? सो वी कैन सिंपली से कि, सो वी कैन आल्सो से दैट थिंग दैट ओके, वो पॉजिटिव टर्म इन करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ओके लेट मी चेंज द कलर आल्सो. ओके, सो करंट की हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी? करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो अब अगर हमारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, तो एक और यहां पर, इफ इन केस वी आर गोइंग टू से कि एक यहां पर और एक यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, बैटरी को. सो हमारे पास 3 सेल्स हो गए, 1 2 and 3. यही हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था कि सेल्स क्या है हमारे, सो बैटरी क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. करेक्ट. तो अब हमारे पास कितने सेल्स है? 3 सेल्स वी हैव. नाउ इन दिस व्हाट वी कैन से कि करंट की हमारी डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन इज गोइंग टू बी दिस, दैट पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ओके, तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट कि हमारे जब हमारा करंट फ्लो करेगा ना, तब हमारा डिफ्लेक्शन आएगा. किसमें डिफ्लेक्शन आएगा? हमारा मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा. सिमिलरली अब जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तब हमारी मैग्नेटिक कंपास नीडल की भी की जो डिफ्लेक्शन है ना, उसमें भी रिवर्स आ जाएगा. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जब करंट फ्लो करेगा तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ओके, एंड जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा. ओके, सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑर्स्टेड. ओके, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया था कि जब हमारा स्विच ऑन स्टेट में होगा, दैट मीन्स करंट, हमारा सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रहा है, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट व्हेनेवर स्विच इज इन ऑफ स्टेट, तो उस टाइम पर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर दिस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वी कैन आल्सो से. अब देखो यहां पर क्या है, हमने एक सर्किट लिया जिसमें हमारे पास कॉपर की वायर है. ओके, हमने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पर ना आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया. ओके, नाउ आफ्टर स्प्रिंकलिंग तो हमने एक बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर दिया.
आफ्टर दीज प्रॉपर कनेक्शंस, ठीक है, ये जब हमारे सारे कनेक्शंस हो गए, हमने जेंटली टैप किया आयरन लाइक कार्डबोर्ड शीट को, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि सिंस आवर सर्किट इज व्हाट, आवर सर्किट इज कंप्लीट, कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या है, करंट विल फ्लो, करेक्ट। अब करंट जब फ्लो कर रहा है तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो आयरन फिलिंग्स है ना, दे आर गोइंग टू अलाइन देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके, दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और कुछ नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी आवर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो अब यहां पर देखो, पहले करंट की डायरेक्शन को देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी करंट की डायरेक्शन फ्लो कर रही है, पर अब यहां पर ना मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमने डिनोट करी है, बट वो कैसे डिनोट करी है हमने, what was the thing that okay that helped us to denote to mark these lines और magnetic field lines की हमने डायरेक्शन कुछ भी ले लिया, no we haven't taken it any random direction, ऐसा नहीं है। अब जैसे like we can also observe यहाँ पर clockwise है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं करी, why not anti clockwise, why only clockwise, so that was being found from, we can say that is from right hand thumb rule, right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, ओके, थंब की डायरेक्शन होगी हमारी किसमें, सो वी हैव टू टेक इट इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, करंट की जिस साइड हमारा करंट फ्लो करेगा, लाइक वी कैन से इफ करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन थंब को ऐसे ले लो, इफ करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन थंब को ऐसे ले लो, ओके, एंड देन कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइक अब ये यहाँ पर हमारे पास इफ इन केस आवर करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा तो दैट मींस नाउ करंट और व्हाट वी कैन से कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कैसे आ रही है, दैट इज कमिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन द सेम मैनर व्हाट वी कैन आल्सो ऑब्जर्व इन दिस केस, देखो यहां से करंट आया हमारे पास, ये आया कौन से डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, कर्ल ऑफ द फिंगर्स इज गोइंग टू गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हिच इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दैट इज क्लॉकवाइज, एंड फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, okay, so I hope students ये चीज आपको समझ आ गई होगी, right hand thumb rule, how it has helped us, okay, so like अब let's say that we have changed the direction of, we have reversed the direction of the current, ठीक है, इनिशियली वो कैसे फ्लो कर रहा था करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज आ रहा था। अब देखो इन द सेम मैनर इफ इन दिस केस हमने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, ओके, सो करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, यहां से यहां फ्लो कर रहा है, दैट मींस इन अपवर्ड डायरेक्शन करंट इज गोइंग टू फ्लो, so हमारी magnetic curl of the fingers, that means it's going to be anti-clockwise, so that's what they have also drawn, okay, so now from here हमें ये समझ आ गया कि अगर हम रिवर्स करते हैं तो कैसे हमारी लाइक मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होगा, बट अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमारे पास निकल कर आते हैं इससे, व्हाट वी कैन से डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में पता लगता है। सेकेंड थिंग इज डिस्टेंस, जितना दूर हम जाते रहेंगे मैग्नेट से, ओके, और वी कैन से उस वायर से, तो उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। नेक्स्ट इज गोइंग ऑल्सो करंट की स्ट्रेंथ पे भी ज्यादा डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी अराइज होगा, ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वी गेट टू नो, एंड हाउ वी गेट टू नो फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल इटसेल्फ, ओके, सो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, देखो imagine you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb is pointing towards the direction of current, that's what I told you कि current की direction में ही thumb जाएगा, then the wrapped fingers around the conductor gives the direction of magnetic field, so that's what we have also discussed कि जिस direction में हमारा current flow करेगा बाकी curl of the fingers are going to give us the direction of magnetic field, and this is known as right hand thumb rule itself, okay, so in the same manner so they have also drawn like magnetic field, जब करंट हमारा फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तब क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, एंड जब हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ओके, अब चलते हैं हमारे पास, देखो अब है सर्कुलर लूप, इनिशियली हमारे पास वो स्ट्रेट वायर थी, करेक्ट, वी वर हैविंग अ स्ट्रेट वायर, अब हमने क्या किया उस स्ट्रेट वायर को ना सर्कुलर लूप में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मोल्ड कर दिया हमने, एंड हमने उसे कन्वर्ट कर दिया सर्कुलर डायरेक्शन में, ठीक है, जब हमने उसे सर्कुलर डायरेक्शन में मूव किया और वी कैन से कन्वर्ट किया, तब हमने क्या ऑब्जर्व किया, तब भी हमारे पास सेम चीज आ रही थी, सेम चीज कैसे आ रही थी, देखो बैटरी थी हमारे पास, की थी हमारे पास, करेक्ट, वी वर हैविंग अ बैटरी, वी वर हैविंग अ की, अब देखो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, सो वी कैन सिंपली से करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
यहां से करंट हमारा, यहां से वी कैन से करंट हमारा फ्लो कर रहा था। ओके या ओके या चलो, तो ये हमारा करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा था। अब फ्लो करने के बाद देखो यहां पर वी कैन से इस वाली आर्म में करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दैट मींस हमारी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट्स व्हाट वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड। बट सिमिलरली अब जब यहां पर करंट पहुंच गया उसके बाद ये डायरेक्शन कौन सी है, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारा करंट कैसे फ्लो करता है, दैट इज गोइंग टू फ्लो क्लॉकवाइज। सो दैट्स व्हाट वी कैन आल्सो सी, इस केस में तो हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, जब हमारा कंडक्टर या तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा या सर्कुलर होगा, क्योंकि हमने वही जो स्ट्रेट था उसे अब हमने सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें पता लगती है एंड हमें ये भी पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज करेंगी विथ डिस्टेंस, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज है ना, दे आर गोइंग टू बी क्वाइट सेम, उनमें कुछ चेंज नहीं आएगा। बस हमें किस चीज को ध्यान में रखना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ राइट हैंड थंब रूल। Okay, so now after this we can say what are the factors that are going to affect due to a current carrying conductor or we can say in a circular loop. So कौन सा हो गया, current through the conductor, distance from the conductor and number of turns in the coil. Okay, और what we can say, जितने ज्यादा अगर let's say टर्न्स होने का मतलब क्या है कि हमारा कंडक्टर उतना स्ट्रांग बन जाता है, जितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा उतना ज्यादा वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। ओके, सो दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द फैक्टर्स जिस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी डिपेंड करती है इन केस ऑफ अ सर्कुलर। अब आते हैं सोलेनॉइड पर। सो व्हाट एग्जैक्टली सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है हमारे पास, अ कॉइल of many circular turns of an insulated wire. So basically इसमें क्या है, closely in the shape of a cylinder. So solenoid में ना हमारे basically what we can say cylindrical wire को हम कर देते हैं। Okay, wire को हम कुछ ऐसे shape में align करते हैं कि वो circular appear हो। Okay, and sometimes ना हम उसमें बीच में क्या कर देते हैं, हम सॉफ्ट आयरन कोर को भी हम यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं हम सॉफ्ट आयरन? देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें इसे ना मैग्नेट के जैसे वर्क करवाना है, करेक्ट। सो सिंस हमारे पास जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ओके, और वी कैन लाइक इंस्टेड ऑफ परमेबिलिटी वी कैन ऑल्सो से कि ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास सॉफ्ट आयरन की सबसे ज्यादा होती है। सॉफ्ट आयरन की हमारे पास जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है कि वो सबसे अच्छा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के उससे बिहेव कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज टू टेक सॉफ्ट आयरन, ओके, इन बिटवीन द वायर्स। जो हमने वायर्स को क्या किया था, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सो जो हमने वायर को रैप किया है ना, उसके बीच में हम किसको यूज कर लेते हैं, हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हेल्प करती हैं दैट कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, सो सोलेनॉइड क्या है, कुछ नहीं है, वायर्स का रैप करना, दैट इज टर्म्ड एज अ सोलेनॉइड इटसेल्फ। अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड कैसे बनाता है, सो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड इज आल्सो गोइंग टू मेक लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। देखो अब इन्होंने क्या कहा है कि व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड, जब भी हम सोलेनॉइड से लाइक हमारे पास लेट्स से दैट वी वर हैविंग अ रैप ऑफ वायर्स इटसेल्फ, ओके, जब हम उनमें से करंट को फ्लो करवाएंगे इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ चेंज। देखो अब यहां पर हमने क्या देखा था, करंट हमारा फ्लो कर रहा था, ओके, सो इन दिस करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि ठीक है यहां से यहां, सो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ साउथ पोल एंड दिस वन इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। बट सिमिलरली अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। सो दैट्स व्हाट दे हैव आल्सो मेंशन्ड। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना of a solenoid that is going to behave like a bar magnet। कैसे करती है देखो, in case of a bar magnet what we know कि हमारी magnetic field lines are going to start from north pole and they are going to emerge at south pole, correct, but inside also they are going to move from south to north क्योंकि वो continuous होती है। Okay, and yes, most important thing, two magnetic field lines can never intersect, so this is going to be two magnetic field lines
field lines can never intersect. So this is going to be one of the important point also. Why it is important? क्योंकि कभी कभी ना ऐसे ही पूछ लेते कि why, यही स्टेटमेंट देके वो ऐसे पूछ लेते हैं कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है. सो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां से मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी एंड टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल. एक ही डायरेक्शन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसा तो है नहीं कि दो दो डायरेक्शंस होंगी. सो दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, तो चलो अब चलते हैं वापस से कि कैसे हमारा सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट एक जैसे उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है. देखो बार मैग्नेट के केस में दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे विल इमर्ज एट साउथ पोल. सिमिलरली इन केस ऑफ अ सोलेनॉइड जब हमारा करंट पास करता है तो करंट पास जब करेगा सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, so that means it is going to behave like a north pole and it is going to behave like a south pole. So that's why since outside the bar magnet, outside the solenoid, north to south and inside south to north. So this is going to be the common factors in case of a bar magnet and in case of a solenoid. कभी-कभी directly magnetic field lines दोनों के केस में draw करने को भी आ जाती हैं. Okay, so you should know that. Okay, so क्या हमारे कौन से पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होनी है, कौन से पोल्स पर वो इमर्ज हो जाएंगे आके. ओके, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर. सो डायरेक्शन देखो, सो डायरेक्शन क्या है इन केस लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ अ सोलेनॉइड. सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से कि वो क्या है हमारे पास, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ. एंड मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी थी, सॉफ्ट आयरन की. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई आल्सो टोल्ड यू. देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी, पैरेलल फील्ड लाइंस इनसाइड हमारी कैसे जा रही थी, दे वर पैरेलल फील्ड लाइंस ओनली. ओके, एंड कंपैरिजन टू अ बार मैग्नेट बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों केसेस में हमारी कैसी थी, सो बोथ ऑफ देम वर सिमिलर इन दोस केसेस. ओके, जैसे बार मैग्नेट के केस में थी वैसी ही हमारी इस केस में भी थी. ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर. दैट इज गोइंग टू बी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास ना कुछ टेम्परेरी मैग्नेट्स भी होते हैं और कुछ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं. हम जब टेम्परेरी मैग्नेट्स की बात करते हैं ना उसमें सबसे मोस्ट वी कैन से जो इंपॉर्टेंट और बेसिक मैग्नेट है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ना आपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी आई थिंक 7th 8th ग्रेड में भी पढ़ा होगा. करेक्ट, बेसिक सा एजेंडा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है हमारे पास. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप का हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट. करेक्ट, हमारे पास कैसा है, टेम्परेरी मैग्नेट. टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं, जब हमें नीड होगी तब हम यूज करेंगे एंड उसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम चेंज कर सकते हैं. So what we can say, electromagnet is a strong magnetic field produced inside a solenoid, can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is known as electromagnet. So that means अब हम क्या करवा रहे हैं, हम मैग्नेट खुद से फॉर्म करवा रहे हैं. लेट्स से कि हमारे पास क्या है, एक आयरन नेल है. ठीक है, आयरन नेल के ऊपर ना हमने लाइक वायर की वाउंडिंग कर दी. ठीक है, जब हमने वाउंडिंग करी और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, सेल और बैटरी से. जब हमने कनेक्ट किया ना उसके बाद हमने क्या किया, अब हमारा सर्किट कंप्लीट था. हमने कुछ वी कैन से कि हमने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर दिया. जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करेंगे ना तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि ना वो जाकर उस आयरन नेल पर स्टिक हो जाएंगे. क्यों होंगे, क्योंकि आयरन नेल एट दैट टाइम इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. ठीक है, उस टाइम के लिए हमारा आयरन नेल कैसे बिहेव कर रहा है, सो इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. बट यहां पर देखो, यहां पर हमने कैसे करी है, जो सर्कुलर रैपिंग है वो कैसी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वी कैन से बहुत पास है सर्कुलर रैपिंग ऑफ दैट वायर. बट सिमिलरली अब हमने क्या किया, अब हमने ना वायर की जो वाउंडिंग थी उसको हमने थोड़ा लाइक वी कैन से लूजली हमने अलाइन कर दिया. जब लूजली अलाइन किया तो हमने देखा बहुत कम वी कैन से मैग्नेटिक मटेरियल जाकर स्टिक हो रहा है आयरन नेल पर. क्यों, क्योंकि इन द फर्स्ट केस वी हैव इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन. ओके, हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाया है. बट इन द सेकेंड केस बाय रिड्यूसिंग द वाउंडिंग्स वी हैव डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. So this is how we can make a change in the magnetic field as per our requirement itself. Okay, and these type of temporary magnets are known as what? These type of temporary magnets are known as electromagnets itself. Okay, अब चलते हैं हमारे next concept पर. That is going to be the force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field. Current carrying conductor है,
ठीक है। अब उस वो अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब कैसे हमें पता लगेगा? हमने क्या किया, एक सर्किट को हमने लिया, हमारे पास वी कैन से एक एल्यूमिनियम रॉड थी, ठीक है, हमने उसे कनेक्ट किया, ये हमारे पास होर्सशू मैग्नेट है, होर्सशू मैग्नेट, ठीक है। जब हमारा सर्किट कंप्लीट है, एट दैट टाइम व्हाट वी कैन से कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी ये रॉड है ना, ये हमारी टिल्ट हो जाएगी। ओके, इट्स गोइंग टू टिल्ट। अब ये टिल्ट क्यों हो रही है? क्योंकि इस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों टिल्ट हो रही है? बिकॉज हमने क्या, मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारा करंट पास ऑन हो रहा है। ओके, सो यहां पर वी कैन सिंपली से करंट पास ऑन होगा, करंट पास ऑन होने की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब उसके बाद जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? उसकी वजह से हमारा फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है, एंड इसी फोर्स की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो रॉड है ना, वो हमारी टिल्ट हो रही है। Okay, so this is going to be the force experienced by a current carrying conductor whenever it's going to be placed in a magnetic field. ठीक है, करंट पास होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो जिसकी वजह से हमारा फोर्स प्रोड्यूस होगा। बट अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हमें इस फोर्स के बारे में पता कैसे लगेगा कि क्या डायरेक्शन रहेगी, कैसे? सो ये हमें किससे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? देखो, सबसे पहले फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या करना है, अपनी ये जो 3 फिंगर्स है ना, ओके, वी कैन से थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, इन्हें ना ऐसे प्लेस करो कि दैट ओके दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो व्हाट दे हैव आल्सो, स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के हमें ये 3 फिंगर्स को ऐसे प्लेस करवाना है दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ द फोरफिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो 4 फिंगर है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एंड देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स। दैट मींस व्हाट वी कैन से, thumb will point in the direction of force, forefinger is going to point in the direction of magnetic field, and then the middle finger is going to point in the direction of current. Okay, तो अगर हमें इन दो डायरेक्शंस के बारे में पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, देन हम ऑब्वियसली बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे वी कैन से कि जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, करेक्ट? सो दैट वी कैन ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे, तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? ओके, लेट मी सो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे जब हमारा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, कहां पर? बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्ट क्या था? डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग टू चेंज। जब हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उससे हमारे पास मल्टीपल चेंजेस आएंगे फोर्स में, लाइक फोर्स की डायरेक्शन में भी चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होती है, फोर्स इज गोइंग टू एक्ट परपेंडिकुलरली। क्यों परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट 3 ऑफ देम आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। Okay, so 3 of them are placed perpendicular to each other, so that's why the direction of force is also going to make a change अगर हमारी एक भी डायरेक्शन में चेंज आता है। ओके, देन अब इसके बाद चलते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की, व्हिच इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक मोटर है, हमारे पास लाउड स्पीकर्स हैं, सो दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द एप्लीकेशंस आल्सो। हाउएवर इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस से अभी लाइक यू कैन से कि ऑप्ट आउट हो चुके हैं, बट यस, इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारे पास था, सो दैट आल्सो वर्क्स ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, दैट आल्सो वर्क्स ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? Anyone having any idea like what's the purpose of electric motor? हमारे पास दो चीजें होती हैं, देखो, like electric motor and second is electric generator. Electric generator. However, electric generator Fleming's के left hand rule पर work नहीं करता है, so I am just making you clear about this thing. देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम क्या करते हैं? हम फ्यूल प्रोवाइड करवाते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, करेक्ट? हम क्या करवाते हैं? हम कोई फ्यूल को प्रोवाइड करवाते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। So that means what we are going to have, we are going to
give mechanical energy which will get converted to electrical energy. Correct? But in the same manner, electric motor क्या है, वो उसका उल्टा करती है. So that means electrical energy will get converted to what? So it will get converted to mechanical energy. Mechanical energy is a combination of kinetic energy and potential energy. ठीक है. So like electric motor का हमें पता लग गया कि electrical energy like हमारी motors किस में होती है, हमारी fans में, normal fans में भी तो motors होती हैं. Correct? So उनका काम क्या है, उनका एंड like हमारे घर पर भी मोटर्स लगी होती है like पानी वाली मोटर्स. So उनका काम क्या होता है, तो वो हमारे टैंक्स में पानी को वो करते हैं. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई मोटर का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. हमारे घर पर व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास कौन सी घर पर सप्लाई आती है, वेदर इट्स गोइंग टू बी एसी और डीसी. यस, हमारे घर पर एसी आती है या डीसी आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है या डायरेक्ट करंट आता है. यस, सो वी गेट अ एसी सप्लाई एट आवर प्लेसेस. बट अब हम एसी सप्लाई, व्हाट डू यू थिंक, क्या हम एसी सप्लाई से ही अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या हम एसी सप्लाई से अपने मोबाइल्स को चार्ज करते हैं? यस और नो? आई नो दैट ओके, हम एसी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसी हमारे पास क्या है, एसी है जिसपे हमारा करंट इज गोइंग टू वेरी. Okay, with time. But जो DC है, AC is alternating current. What itself is telling us that is alternating current. DC क्या है, जिसमें unidirectional होता है. Okay, in one direction current is going to flow. However, हमारे घर पर क्या आता है, हमारे घर पर AC सप्लाई आती है, बट हम उसे कैसे DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, that if in case you know, you can let us know in the comment section also. ठीक है. However, otherwise you will study about that कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे. That also like you are going to study in your grade 12. ओके तो चलो अब चलते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वहां पर हमारे घर पे जो वायरिंग्स होती हैं वो 3 टाइप की वायरिंग होती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर. लाइव वायर का काम क्या है, वो पावर सप्लाई से आपके लाइक यू कैन से करंट को लेकर आएगा. ओके, सो जो हमारे वी कैन से कि जो मीटर्स होते हैं ना घर के बाहर, तो वो वहां से लेकर आता है. ओके, दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ लाइव वायर. तो दैट्स व्हाई वी शुड नेवर टच द लाइव वायर. देन आता है न्यूट्रल वायर, एंड या लाइव वायर कंटेन्स पॉजिटिव टर्मिनल, रेड इंसुलेशन. रेड इंसुलेशन होता है बिकॉज रेड कलर की इंसुलेशन ही क्यों होती है, व्हाई ओनली रेड? रेड कलर की इंसुलेशन का काम ये है बिकॉज रेड इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम वेवलेंथ, इफ यू रिमेंबर, ये चीज हमने किस में पढ़ी थी? This we have also studied in the human eye and the colorful world वाले यूनिट में. करेक्ट. रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, दैट चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो देखो, रेड कलर की हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है. मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ना डेंजर है. ओके, डेंजर के जो साइंस होते हैं ना वो भी रेड कलर से बने होते हैं. क्यों? सो दैट वी शुड नॉट टच. अगर हम उसे टच करेंगे देन इट कैन इम्पैक्ट अस, इट कैन हार्म अस. दैट्स व्हाई. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल वायर. न्यूट्रल वायर कंटेन्स नेगेटिव टर्मिनल, ब्लैक इंसुलेशन. ओके, देन वी आर हैविंग अर्थ वायर. अर्थ वायर का काम क्या है कि जितने एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे ना वो अपने क्या करेगा, वो हमें शॉक से बेसिकली सेव करता है. ओके, सो वो एक्स्ट्रा चार्जेस को वी कैन से इट विल जस्ट टेक अवे. ओके, सो दीज आर गोइंग टू बी द 3 टाइप्स ऑफ वायर दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड एट आवर प्लेसेस. सो लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर. अब चलते हैं कि जो पाथ है, पाथ इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वो कैसा होता है. सबसे पहले पोल से कहां आएगा, मेन सप्लाई. मेन सप्लाई से कहां आएगा, फ्यूज पर. फ्यूज से आने के बाद हमारे पास हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स पर. देन इलेक्ट्रिक मीटर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस सप्लाई को. एंड देन सेपरेट सेपरेट सर्किट्स हमारे अपने जितना रिक्वायर्ड होगा उन्हें करंट और यू कैन से जितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी वो अपने ले लेंगे एंड देन दे विल ऑपरेट. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द पाथ इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. So one thing students, you need to make sure अगर आपके पास ऐसे पाथ आता है तो you can draw it like this also. Okay, you can draw it like this. तो it will become very easy for a teacher also so that they can also like उन्हें भी समझ आ जाता है. ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ऐसे सप्लाई हमारी फ्लो कर रही है. ओके, तो अब देखो, सबसे पहले 3 टाइप्स की वायर है हमारे पास, अर्थ वायर, लाइव वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर एंड देन वी आर हैविंग अ न्यूट्रल वायर. ठीक है, उसके बाद कहां से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोथ फ्यूज वहां पर गया. देन इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर, देन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू गेट इट एट आवर प्लेसेस. डिफरेंट अप्लायंसेस आर गोइंग टू गेट डिफरेंट करंट्स. ओके, एंड हमारे घर पर कितनी वोल्टेज आती है, सो दैट इज गोइंग टू बी 220 वोल्ट्स.
ठीक है 220 वोल्ट आती है, बट हमारे जो फोन को अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जो मोबाइल फोन्स को चार्ज करने के लिए दैट इज अराउंड 10 to 12 वोल्ट। सो अब एक चीज को देखो, जब 220 वोल्ट आ रही है बट हमें तो कितनी चाहिए 10 to 12 वोल्ट, तो कैसे कन्वर्ट हो रही है, थोड़ा सा यू कैन यूज योर ब्रेन ऑल्सो। ओके, अदरवाइज इन 12th ग्रेड दैट टॉपिक इज देयर। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सो इफ इन केस वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो दैट इज गोइंग टू बी 50 हर्ट्ज। ओके, जो हमारे घर पर आती है फ्रीक्वेंसी, सो वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ओके, देन उसके बाद ये हमारा एंटायर पाथ था। अब इसके बाद में देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग भी हो जाती है, कभी कभी ओवरलोडिंग भी हो जाती है। तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग इज व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर। ठीक है, जब लाइव वायर हमारी न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है, उस टाइम पर व्हाट वी कैन ऑब्जर्व अ शॉर्ट सर्किट, एंड एट दैट टाइम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स लो। रेजिस्टेंस लो तभी तो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज रेजिस्टेंस का काम क्या है, टू अपोज द करंट, बट उस टाइम पर तो अपोज नहीं हो रहा है। ओके, देन आफ्टर दैट इट कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। ऑब्वियसली उसकी वजह से अब क्या होगा, हमारे पास ओवरलोडिंग हो गई, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। अब ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरलोडिंग क्या है, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू एन ओवरलोडिंग। So causes क्या है, एक्सीडेंटल हाइक इन द वोल्टेज सप्लाई, यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंसेस इन सिंगल सॉकेट। कभी कभी हम घर पे भी ऑब्जर्व करते हैं, एक ही लाइक वी वर हैविंग अ 3 पिन। ओके, 3 पिन में हमने सारी जगह पर कनेक्ट कर दिया, और बट हमने अप्लायंसेस ऐसे से कनेक्ट किए जिन्हें ज्यादा सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो ओवरलोडिंग को लीड करेगा, एंड ओवरलोडिंग को लीड करेगा तो दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से कि हमारा जो सर्किट है वो खराब हो जाएगा। ओके, सर्किट इज गोइंग टू बेसिकली ब्रेक। अब जब हमारा सर्किट ब्रेक हो रहा है तो हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं, फॉर दैट वी कैन यूज सम सेफ्टी डिवाइसेस। ओके, सेफ्टी डिवाइस कौन कौन से हैं, 2 सेफ्टी डिवाइस है, इधर वी कैन यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज और वी कैन यूज एमसीबी। एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज फर्स्टली इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस मतलब क्या है, विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो वायर होती है ना, वो खुद ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक हो गई तो मतलब करंट हमारा पास ऑन नहीं होगा। अब जब करंट हमारा पास ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस टाइम पर हमारा अप्लायंस सेफ रहेगा। ओके, सो फ्यूज इज यूज्ड टू, और बेसिकली वी कैन से इट इज मेड अप ऑफ अ प्योर टिन और एलॉय of copper and tin. Then next, it is always connected in series with live wire. Then it has low melting point. Low melting point, so that means our appliances should be safe. Current capacity of fuse is slightly lighter than that of the appliance. ठीक है, क्योंकि हमें appliances को safe रखना है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या आता है, that is going to be MCB. MCB का काम क्या है, what was the full form? Miniature circuit breaker. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव करंट। आप लोगों में से किस किसने देखा है एमसीबी? इफ यू हैव वॉच्ड एमसीबी, इफ यू हैव सीन एमसीबी आउटसाइड योर प्लेसेस, यू कैन लेट मी नो आल्सो। सबने देखा है एमसीबी को? ठीक है, एमसीबी का काम क्या है कि जब हमारा ज्यादा करंट सप्लाई होगा उस टाइम पर हमारा वी कैन से एमसीबी हमारी ड्रॉप डाउन हो जाती है। ये क्या है, एमसीबी। ठीक है, एमसीबी क्या होगी, ड्रॉप डाउन हो गई, ऑफ हो गई, तो दैट मीन्स अब करंट ही नहीं मिलेगा। Okay, so that's why it is going to MCB is what? Miniature circuit breaker. अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट आती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? Does it work on to the principle of magnetic effect or not? So electric fuse works on to the principle of heating effect of electric current. Heating effect of electric current. ओके, वेयर एज जो हमारे पास एमसीबी है, एमसीबी वर्क्स ऑन टू, एमसीबी जो है दैट वर्क्स ऑन टू द मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा किस पर करेगा, दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन टू द हीटिंग इफेक्ट, बट एमसीबी हमारा वर्क करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट पर। सो डोंट थिंक इट लाइक दैट कि दोनों हमारे उसी पर वर्क कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर, क्योंकि जब गर्म होगा, व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जब गर्म होगी तभी तो वो ब्रेक होगी ना, सो दैट्स व्हाई उसका लो मेल्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड था। ओके,
So so these are going to be the two safety devices which can help us. Now okay, so what we have discussed entirely about this chapter. So that's why what you need to do, you can make your own notes, and agar koi bhi doubt hai, you can let us know in the comment section. Now, one thing that is required from your end, so make sure that you are going to subscribe our channel, like the video, share it with your friends, and you can comment us in the comment section. Okay, students, so till the time, bye everyone, take care, and we'll meet you in the next video.